ویو 360 میں آبنائے ہرمز کے قریب 4 تیل بردار بحری جہاز تخریب کاری کا نشانہ، کیا تیل کی بین الاقوامی نقل و حرکت خطرے میں ہے؟ بھارتی سیاستدانوں کا انتخابی مہم پر ریکارڈ خرچ، نئے امیدوار لے رہے ہیں سوشل میڈیا کا سہارا۔ اور صوبہ پنجاب میں قدرتی ریشم کی پیداوار پر خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق اس کی بندرگاہ فجیرہ کے قریب 4 تیل بردار بحری جہاز تخریب کاری کا نشانہ بنے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 جہاز اس کے ہیں۔ یہ واقعہ دنیا بھر میں تیل کی رسد کے اہم ترین سمندری راستے آبنائے ہرمز کے قریب پیش آئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تخریب کاری کی نوعیت واضح نہیں کی، لیکن سعودی عرب نے واقعے کو تیل کی محفوظ رسد کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پہ پیش آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ سخت ہے اور امریکہ کا جنگی بحری بیڑا علاقے میں موجود ہے۔ ایران نے اس واقعے کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی روس کے دارالحکومت ماسکو کے بجائے بیلجیم کے شہر برسلز جانے کا فیصلہ کیا آج، جہاں وہ یورپی یونین کے عہدیداروں سے ملے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے سحر ماجد کی جانب۔ سحر، یہ بتائیے کہ تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟ جی سارا، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو پیر کے روز ماسکو میں سفارتکاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کرنی تھی، لیکن اب یہ ملاقات منگل کے روز ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس دورے میں ایک اہم موضوع ایران ہوگا، جو امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث بھی ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کے بجائے سفارتکاری کا استعمال کریں۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی طاقت بڑھا رہا ہے، جس کے بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا دراصل ایران کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اچھا، امریکہ اور ایران کا جو اس وقت جوہری معاہدے سے متعلق اس وقت جو صورتحال جاری ہے، اس پہ یورپی یونین کے عہدیداروں کا کیا کہنا ہے؟ جی، یورپین یونین کے خارجی امور کی نمائندہ فیڈریکا موگرینی کا کہنا ہے کہ ایران سے ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کی وہ حمایت کرتی ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے پر عمل کرنے کے حامی ہیں۔ آج ہمارے اور فرانس، جرمنی اور UK کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک میٹنگ بھی ہوگی، جس میں ہم تبادلہ خیال کریں گے کہ ایران کے ساتھ اس نیوکلیئر ڈیل کو کس طرح مؤثر بنایا جائے، جو نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم جزو ہے۔ اس لیے ہم اس معاہدے کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور اس بات سے امریکہ اور ایران اچھی طرح باخبر ہیں۔ مائک پومپیو کا یورپ کا یہ دورہ جاپان میں ہونے والی G20 سمٹ سے کچھ ہفتہ پہلے ہی آیا ہے، جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن دونوں ہی شرکت کریں گے۔ اور اس موقع پہ بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کا جو معاملہ ہے اس پہ ضرور بات چیت ہوگی۔ سحر ماجد تک ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، تھینک یو فار دی اپڈیٹس۔ اس وقت ایران کی تیل کی درآمدات امریکی پابندیوں کا نشانہ ہیں اور اطلاعات کے مطابق ان کا واضح اثر بھی ہو رہا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق تیل بردار ٹینکرز کے ٹریکنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ مئی کے پہلے 9 دنوں کے دوران ایران کی بندرگاہ سے خام تیل کا کوئی بحری جہاز بھی نہیں نکلا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی تجارت جاری رکھے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ خریدار کون ہوگا؟ دنیا بھر میں تیل کے تجارتی راستوں کا تحفظ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے آبنائے ہرمز کے قریب 4 آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچنے کا واقعہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ دنیا بھر میں ہی تیل کی رسد کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہر سال دنیا میں 4 ارب ٹن خام تیل پیدا اور ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تیل پہنچانے کے 2 طریقے ہیں، ایک بذریعہ پائپ لائنز اور دوسرا بذریعہ سمندر۔ عالمی سطح پر تیل کی تقریباً 50% آمد و رفت سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے، لیکن اہم ترین روٹس پر کچھ بڑی رکاوٹیں بھی ہیں، جیسے وہ مقام جہاں راستہ تنگ ہے اور جہاز زیادہ۔ ان میں سب سے اہم ہے عمان اور ایران کے درمیان واقع آبنائے ہرمز، پانی کا صرف 40 کلومیٹر چوڑا راستہ، جہاں سے روزانہ 17 ملین بیرل تیل گزرتا ہے۔ یہ کل بحری ٹریفک کا 35% ہے۔ ایران یہ راستہ بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ معاشی پابندیوں کے ذریعے تہران پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ ایک نئے جوہری معاہدے پہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے اور خطے میں اپنے ان عزائم کو ترک کر دے جنہیں امریکہ اپنے اور اتحادیوں کے مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔
जब से मैंने इनसे ईरान डील वापस ली है, इनकी मईशत का बुरा हाल है। वहाँ अफरात ज़र इस वक्त जितनी ज्यादा है वो मैंने इससे पहले नहीं देखी। हर वीकेंड और हफ्ते के दौरान वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। इन्हें मुझे कॉल कर कर बातचीत के लिए बैठना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके पास जौहरी हथियार न हो। ये कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं। ईरान के फौजी कमांडर्स ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने जौहरी मुआहदे के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद तर्क करने का फैसला किया, लेकिन वो मुआहदा जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार ही कर रहे हैं। हमारी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम जौहरी मुआहदे से अलग नहीं हुए। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि जौहरी मुआहदा अब बाकी नहीं रहा, ये अब भी बाकी है। आज हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएंगे। जौहरी मुआहदे के आर्टिकल्स 26 और 36 के मुताबिक दूसरे फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी की सूरत में हम अपनी कमिटमेंट्स को किसी भी सतह तक कम कर सकते हैं। अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि वो ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहता, लेकिन साथ ही मशरक़ वस्ता में अपने जंगी साजो सामान को बढ़ा भी रहा है। जुम्मे के रोज पेंटागन ने पेट्रियट मिसाइल निज़ाम और जंगी बहरी जहाज USS आर्लिंगटन को मशरक़ वस्ता रवाना करने का ऐलान किया। इस वक्त पहले ही अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज USS लिंकन मशरक़ वस्ता पहुंच चुका है और अमेरिका के 4 B-52 बॉम्बर्स भी कतर में अमेरिका के फौजी अड्डे पे उतर चुके हैं। पेंटागन के मुताबिक ईरान से जमीन और समंदर पर खतरा है और ईरानी फौज कमर्शियल कश्तियों को मुमकिना तौर पर हथियारों से लैस कर रही है। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी से मुंसलिक केली थॉमस से। केली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो टुडे। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 24 आवर्स, द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन द वाटर्स नियर द UAE. What kind of repercussions can it have for regional security and also for the tensions that we see right now between Tehran and Washington? Thank you so much for having me today. This is definitely concerning, and if those Saudi oil tankers were actually sabotaged by Iran, it's not something that's outside of their playbook, and it's the kind of action that we can expect to see potentially over the next couple of months as the U.S. also continues its escalatory actions. Iran will and sensibly try to build leverage as the U.S. seeks to bring it back to the negotiating table. राइट, सो केली कहती हैं कि एक परेशान कुन सूरत हाल ज़रूर है और उनका कहना है कि अगर ईरान ने ऐसा ही किया है और जो केली के मुताबिक ऐसा एक हथकंडा है जो ईरान इस्तेमाल कर सकता है, तो ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल इससे डेवलप होगी। ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसकी वजह से फिर अमेरिका भी जो उसके कह लीजिए एस्केलेशन जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही हैं उस इलाके में, वो उसी तरह जारी रहेंगी, यानी जो दर्जा हरारत है इलाके का वो बढ़ता ही रहेगा। So Kelly, if the end goal is to bring Tehran to the negotiating table and to have Washington and Tehran discuss any prospects for a future nuclear deal or any change in what the US calls Iran's perceived negative behavior, how would that even be possible, especially given the level of escalation right now? Yes, what we see is the United States pursuing a maximum pressure strategy, but something that is very heavily reliant on incendiary rhetoric, as well as these intense and punishing economic sanctions. But without, multilateral action with our allies and partners, and without kind of diplomatic engagement of Iran, these are the things that brought Iran to the negotiating table, 4 years ago. It's unlikely to see a new and better deal come out of the situation. Mm-hmm. So would you say that they need, again, to go back to diplomatic tools, or would you say that these tactics could put the pressure that would bring them to the table? I think these tactics are only going to take us farther down an escalatory path, and that we need these diplomatic tools in order to actually come to a new deal. All right, so केली कहती हैं कि जहाँ तक अमेरिका और तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की बात है, तो जिस किस्म के इस वक्त कह लीजिए कि तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें इंतहाई दबाव डाला जा रहा है वाशिंगटन की जानिब से, बहुत सख्त बयानात सामने आ रहे हैं और उसके अलावा माशी पाबंदियाँ भी बहुत ही ऐसी हैं जो तेहरान के लिए बहुत तकलीफदेह हैं, तो ये ऐसे इक़दाम हैं जो तेहरान का भी मौक़िफ़ मज़ीद सख्त करेंगे और दोनों जानिब से ही जो टेंशन्स हैं वो बढ़ेंगी। इसलिए अगर कुछ ऐसे किस्म के हालात चाहिए, ऐसा मुआहदा चाहिए जो 4 साल पहले यानी 2015 में बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ किया था ईरान ने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिफारती रास्ते जो हैं वो अपनाए जाएँ। To what extent do you think Washington and Tehran can afford to escalate these tensions? Because Jeremy Hunt, who's the foreign minister of Britain, he today said that there is even a chance that the two countries could enter a conflict by accident. Yes, so I don't think either the United States or Iran actually want to go to war, but we are entering amid these tensions. We're increasing the risk that there is a miscalculation on either party's part. And as the U.S. is very much kind of acting alone and without the support of its European allies or its
partners in the region, which also wouldn't benefit from a large-scale escalation. We need to start kind of pulling back these actions, both on the United States part and Iran, and it's really up to, I think, to the Europeans to force one of them to kind of act first in that regard. ऑलराइट, सो हेली कहती हैं कि दोनों ही मुल्क जंग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इस वक्त गलती का इम्कान भी अपनी जगह पूरा है। और दूसरा ये कि चूंकि अमेरिका तन्हा इन एक्शंस को इस वक्त आगे लेके जा रहा है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से उसको भरपूर हिमायत हासिल नहीं है। हमने देखा भी यूरोपीय यूनियन की फेडरिका मोगेरिनी ने भी कहा कि वो जो न्यूक्लियर डील है उसकी हिमायत करती हैं। तो इसलिए अगर कुछ नुकसान होता है तो उससे अमेरिका के लिए सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसके एलाइज इस एफर्ट में साथ नहीं हैं। और इसी वजह से अब ये देखना होगा कि क्या जो यूरोपियंस हैं इस वक्त वो दोनों पार्टीज़ को, अमेरिका को भी और तेहरान को भी, यानी ईरान को भी मुज़ाकरात की मेज़ पे ला पाते हैं या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ मच क्लाउड डू द यूरोपियंस हैव? Right now with the Trump administration itself, I mean, it remains to be seen. They've definitely had a rocky relationship on not just Iran, but on many other issues as well. They are the ones, however, providing, any benefits to Iran within the existing JCPOA. They've supported Iran thus far, and they've really tried to be that mediating actor. And so I think we need to at least see an effort, whether or not that's realized, to say to both parties, we need to start pulling back. तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि यूरोपीय यूनियन का कितना असर और रसूख है इस मामले में, तो केली कहती हैं कि जहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात है तो वो बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं है। बहुत से मामलात पे दोनों के दरमियान एक तनाव पाया जाता है, इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ही वो वाहिद कह लीजिए फ़रीक है जो अमरीका और तेहरान दोनों से बातचीत कर रहा है और जो न्यूक्लियर माहिदा है उस पर ईरान के साथ मामलात को आगे भी बढ़ा रहा है। सो इस वक्त कह लीजिए कि उनके हाथ में ऐसे कम अज़ कम कुछ कार्ड्स ज़रूर हैं जिनके ज़रिए वो इस मामले पे किसी किस्म का तस्फिया कराने की पोजीशन में है। केली थॉमस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। और अब चलते हैं भारत, जहां लोकसभा के इंतखाबात का छठा मरहला जारी है। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के इन इंतखाबात पर अखराजात का अंदाजन रिकॉर्ड $8 अरब लगाया गया है। 2014 में जब इंतखाबात हुए थे तो उम्मीदवारों ने अंदाजन $5 अरब अपनी इंतखाबी मुहिम पर खर्च किए गए थे। तो एक तरफ तो इस फंडिंग की शफाफियत पे सवाल उठते हैं, लेकिन इस मरतबा तमाम तर पैसा बड़े डोनर्स की तरफ से नहीं आ रहा। नए उम्मीदवार चंदा जमा कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो आइए देखते हैं भारत का पहला क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किस तरह काम कर रहा है। आतिशी मार्लिना नई दिल्ली के एक कम आमदनी वाले इलाके में वोटर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिश में उनसे तब्दीली लाने का वादा कर रही हैं। वो भारतीय पार्लियामेंट के लिए पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रही हैं। मुझे एहसास हुआ है कि अगर आप फैसला साजी की पोजीशन के लिए दुरुस्त अफराद का इंतखाब करेंगे तो इसके आम लोगों की जिंदगी पर गहरे असरात पड़ते हैं। आतिशी का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है, जो 6 साल पहले करप्शन खत्म करने के नारे के साथ सामने आई थी और जिसके पास बड़ी सियासी पार्टीज की मानंद बड़े माली जराए नहीं। अपनी इंतखाबी मुहिम के अखराजात के लिए उन्होंने पैसे जमा करने की खातिर इंडिया के पहले सियासी इज्तिमाई फंड के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जो जनवरी में बनाया गया था। गुज़िश्ता 4 महीनों में हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हम कम से कम इस काबिल हुए हैं और 2 ऐसे मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में लाए हैं जिन्होंने आम इज्तिमाआत के जरिए अपनी मुहिम के लिए फंडिंग हासिल की है। लोकसभा के इस इंतखाब ने एक बात वाज़ेह की है कि अगर आपने गुज़िश्ता 5 साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी समाजी और सियासी हैसियत बनाई है तो आप इसे अपने लिए फंड जमा करने की खातिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। आतिशी के अलावा इस तरह फंड जमा करने वालों में एक तालिब इल्म कुन्हिया कुमार भी शामिल हैं। दोनों ने तकरीबन $1 लाख जमा किए हैं, जो इंतखाबी मुहिम के अखराजात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा हद है। चंदा देने वालों में रक्षा चलाने वाले और तालिब इल्मों से लेकर आम शहरी तक शामिल हैं, जो ये चाहते हैं कि सियासत में निचली सतह से लोग आएं, यानी ऐसे लोग जो इंतखाबी मुहिम का बोझ भी नहीं उठा सकते। मुख्तलिफ सर्विस के मुताबिक 2019 के भारतीय इलेक्शन में $8 अरब खर्च होंगे। क्या हम बेहतर लोगों को मुंतखब कर रहे हैं? नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। इसके बरक्स आप देखते हैं कि नहायत अमीर और मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले लोगों में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है कि हम गलत जमहूरी मंजरनामे का हिस्सा बन रहे हैं। भारत में आमतौर पर बेशतर सियासी फंडिंग बड़ी बड़ी कारपोरेशन से हासिल होती है, लेकिन ऐसे में जब भारत में 40 करोड़ से ज्यादा के पास स्मार्टफोन्स हैं, अब ये इन्हिसार हो सकता है कि कम हो रहा हो।
जब आप बड़े कारोबारी इदारों और बड़ी कारपोरेशन से पैसे लेते हैं और मुंतखब हो जाते हैं तो फिर आप उनके ज़ेरे असर आ जाते हैं। दूसरी सूरत में जब आम लोग मुझे फंड देते हैं तो मैं आम लोगों के मफाद के लिए आसानी से काम कर सकती हूँ। अगर एक फर्द भी आम लोगों के चंदे की मदद से पार्लियामेंट में पहुंचता है तो इससे मजीद उम्मीदवारों के लिए इसी रास्ते पर चलने की हौसला अफजाई होती है। एंजेला पसरीचा के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। आज के शो में जिस तरह हमने बात की, मशरिक़ वस्ता स्पॉटलाइट में है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो टेंशन्स हैं मुसलसल रुख मुख्तलिफ इख्तियार कर रही हैं, बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं, डेवलपिंग स्टोरी है। इसको हम अपडेट करते रहेंगे हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आप सबके लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और खत्ते के दीगर मुल्कों की खबरें भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के महकमा खारजा की नायब मावन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स इस वक्त काबुल में हैं। उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात की है और अमेरिका की इमदाद और अफगानिस्तान को खुद इन्हिसार की राह पर गामजन करने की कोशिशों पर मुज़ाकरात किए हैं। तफसीलात के लिए आइए हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आती है तो facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त हाजिर है, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट बआसानी मिलेगी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जहां बेपनाह खूबसूरती है, इसके बावजूद, इस खूबसूरती के बावजूद सयाहत का शोबा बदअमनी के बाइस जवाल का शिकार है। पुलवामा हमले का असर बहुत से मकामी कारोबारों पर साफ नजर भी आ रहा है। इससे पहले मारूफ अस्करियत पसंद कमांडर बुरहान वानी की हलाकत ने भी वादी के हालात को सयाहत के लिए गैर मौजू बना दिया था। आज देखते हैं श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट। भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में 5 लाख से ज़ायद अफराद सयाहत की सनत से बिलवास्ता या बिलावास्ता रोजगार कमाते हैं। रऊफ त्रम्बू वादी कश्मीर में टूर ऑपरेटर हैं। पुलवामा हमले ने इनका कारोबार दरहम भरम कर दिया है। कुछ तो इंस्टेंट कैंसिलेशन में आ गई, लेकिन वो जो दूसरी होल्ड पे थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिलीज कर दी और वो भी कैंसिल होती गई। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया समेत कई मुल्कों ने अपने शहरियों को कश्मीर का रुख न करने का मशवरा दिया। सयाहत की सनत से वाबस्ता बाज अफराद इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय ज़राए अबलाग के एक बड़े हिस्से, बिलखुसूस निजी टेलीविजन चैनल्स की तरफ से कश्मीर की खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की रवश भी सयाहों को वादी से दूर रख रही है। काम बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है क्योंकि टूरिस्ट आते नहीं हैं। इसकी मेन वजह है फॉल्स मीडिया, जो मीडिया गलत फैला रहा है, उसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। महकमे सयाहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2012 में 12 लाख से जायद भारतीय और गैर मुल्की सयाह कश्मीर आए थे, लेकिन 2016 में मारूफ अस्करी कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद हालात फिर से बिगड़ गए। 2018 में सयाहों की तादाद कम होकर 8,50,000 रह गई, लेकिन अक्सर टूर ऑपरेटर्स इन सरकारी एदाद-ओ-शुमार पर शक व शुबे का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि ये एदाद-ओ-शुमार हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशनों और बस अड्डों पर आने वाले अफराद की गिनती से हासिल होते हैं और इनमें मकामी लोगों, मखसूस मुद्दत के लिए काम तलाश करने वालों, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले पेशावर भिखारियों को भी शुमार किया जाता है। महकमे सयाहत सयाहों को लुभाने के लिए मुहिम पर बड़ी रकम खर्च कर रहा है। वो इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करा रहा है। कश्मीर में कहीं भी किसी सयाह पर कोई हमला नहीं हुआ। वो यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। कश्मीरी बहुत मेहमान नवाज कौम है। सयाहत भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर की मजमूई दाखिली पैदावार या GDP का 8% हिस्सा है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अमन अमान, जिसे बहाल करना महकमे सयाहत के बस से बाहर है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां कुदरती रेशम की सालाना तलब पैदावार से कहीं ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक सूबा पंजाब पाकिस्तान को सिल्क यानी कुदरती रेशम की पैदावार में खुद कफील बना सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रेशम पैदा करने वालों और उसे इस्तेमाल करने वालों के दरमियान राब्ता भी पैदा किया जाए। लाहौर के नवाही इलाके छांगा मांगा से आज समन खान रिपोर्ट कर रही हैं कि ताहाल विफाक की नज़रों से ओझल रेशम की सूबाई कॉटेज इंडस्ट्री को महकमा सेरिकल्चर किस तरह अपनी मदद आपके तहत आगे लेके चल रहा है। छांगा मांगा के जंगलात में 100 एकड़ का रकबा शहतूत के दरख्तों के लिए मुख्तस है। ये दरख्त खास उन खानदानों के लिए उगाए गए हैं जिन्होंने अपने घरों में रेशम के कीड़े पाल रखे हैं।
छांगा मांगा के तकरीबन 600 खानदान बहार के मौसम में रेशम के कीड़ों की अफजाइश नस्ल में मसरूफ हो जाते हैं, जब उन्हें महकमा सेरीकल्चर की जानिब से 2000 रुपए के इवज कीड़ों के अंडों के 1 या 2 पैकेट दिए जाते हैं। ये खानदान नाख्वानदा सही कीड़े पालने की साइंस अच्छी तरह जानते हैं। पहले 10 दिन इन्हें नपीदा है। छोटी सी पोटली होती है, सफेद कपड़ा लेकर रुई डालते हैं, उसमें बांध कर बिस्तर में लेकर बैठ जाते हैं और सुबह होते ही धूप में रख देते हैं, जिसके बाद 7 से 8 घंटे में कीड़े निकल आते हैं। कई हफ्तों की निगहदाश्त के बाद कीड़े अपने गिर्द रेशम का एक कोकून बना लेते हैं। ये कोकून 7 से 800 रुपए फी किलो में फरोख्त होता है और एक पैकेट पालने वाला खानदान 30 से 35 हजार रुपए मुनाफा कमा लेता है। मुनाफा बख्श होने के बावजूद रेशम के कीड़ों को पालने की सनत इस रोजगार से जुड़े अफराद के लिए एक मुतबादिल ज़राए आमदन है। इसे फरोग देने के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी मुनासिब तशहीर की जरूरत साफ नजर आती है। महकमे सेरीकल्चर के मुताबिक पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर को सालाना 500 मैट्रिक टन सिल्क की जरूरत होती है, लेकिन साल 2019 के पहले सीजन में सूबे पंजाब में सिल्क की पैदावार सिर्फ 25 टन रही। पाकिस्तान में ज्यादातर सिल्क चाइना और दुबई से दरामद की जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर वो फेडरल गवर्नमेंट में आता है, उसका फेडरल सब्जेक्ट है, और जो प्रोड्यूसर है वो पंजाब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसकी जो एक्सेस है वो कंज्यूमर तक पहुंच नहीं रही। पंजाब में कुदरती रेशम की पैदावार सिर्फ फरवरी से अप्रैल के दौरान की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता साल मौसम खज़ां में महकमा सेरीकल्चर पंजाब ने चाइनीज कंपनी की जानिब से दिए गए सिल्क सीड को पालने का कामयाब तजर्बा करवाया। चीन में रेशम साजी की मजदूरी महंगी होने के बाइस अब वहाँ का सरमायादार पाकिस्तान में लोगों को नई टेक्नोलॉजी सिखाने में भी दिलचस्पी ले रहा है। पाकिस्तान में देसी तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है जो तहकीक के मुताबिक अच्छा नहीं, लेकिन लोग इसी पर चल रहे हैं और वो किसी हद तक काम भी कर रहा है। हम लोगों को चीन की तर्ज पर तरबियत देंगे, क्योंकि चीन ने सिल्क इंडस्ट्री बनाने में सदियों का सफर तय किया है। इस सनत से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन का मेंबर बनना चाहिए, जिससे सिल्क पैदा करने वाले दूसरे ममालिक के माहिरीन और उनकी महारत से पाकिस्तान फायदा उठा सकेगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, छांगा मांगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों ने कल माँ का दिन मनाया। माँ से प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन इस प्यार का इजहार हम कैसे करते हैं? पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर 1 लाख में से औसतन 178 माएँ बच्चे को जन्म देने के दौरान मौत के मुंह में चली जाती हैं, क्योंकि उन माओं की न सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत इस काबिल नहीं होती कि वो एक नई जान को इस दुनिया में ला सकें, बल्कि उन्हें सेहत की अक्सर वो सहूलतें भी बर वक्त नहीं मिलती जो उनकी जान बचा सकें। कम उम्री की शादी भी लड़कियों की ख़राब सेहत, उन पर तशद्दुद और उनकी मौत की बड़ी वजूहात में से एक है। माँ से मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें, हर रोज़ करें, जैसे चाहें करें, लेकिन माँ से मोहब्बत कुछ अधूरी नहीं अगर औरत के लिए दिल में एहसास नहीं, नन्ही बच्चियों के मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं। क्या ख्याल है आपका? हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे इस मौजू पे। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। प्रोग्राम के बारे में भी आप हमें अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं और शो में शामिल रिपोर्ट्स भी दोबारा देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।